देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? इट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है यूनिट्स को। तो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हमारे पास चार हैं। एक है हमारा सीजीएस सिस्टम, दूसरा एमकेएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम। सो देयर आर 4 systems of unit, or we can say unit systems of unit or representation of unit. We can represent the unit in 4 ways. One is CGS, MKS, FPS and SI. So let us start with CGS system. It was first introduced in France. This system was first introduced in France and it is also known as Gaussian system. And from its name it suggests कि हम क्या करेंगे, हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ जो भी हैं, जैसे उनको जैसे लेंथ हो गई और हमारा क्या हो गया, मास हो गया और टाइम, इनको हम मेजर किस में करेंगे? C stands for centimeter, G stands for gram, mass is measured in gram and the unit for the length is centimeter and the time is measured in seconds. So we can call this system as CGS system, that is centimeter gram system. And the second system after this which was introduced was meter kilogram second system, which was also developed in France. So this is also called as a French system, and in this we can say M stands for meter, K for kilogram and S for second. So this is a second type of system of units. Next, third is FPS, which is also known as foot pound system, and we can call this as British system also, this British system of units, and where F stands for foot. Foot, again the unit is for length and the pound is for mass, and again S stands for second, which is for time. The last and the fourth system of unit is SI system, which is called as international system. It was introduced in 1971 and it stands for International System of Units. SI सिस्टम बोल सकते हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं हमारे पास। इसके अंदर SI सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं। हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो हैं लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पहले से समझ चुके हैं। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज? जो किसी और क्वांटिटीज से डिराइव नहीं होते, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेते डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब इनका खुद का है, डेरिवेशन किसी और से डिराइव नहीं हो रहे हैं ये। तो लेंथ हो गया, जिसको हम किससे लिखते हैं? मीटर से लिखते हैं और उसका सिंबल क्या है? m, ठीक है। सेकेंड हमारा हो गया मास, we measure it is in kilogram and the symbol is kg. The third fundamental unit is time, okay, which is measured in seconds and the symbol is S. Fourth is temperature, which is measured in Kelvin and the symbol is K. The fifth fundamental unit is electric current, which is measured in ampere and the symbol is A for ampere. And the sixth is luminous intensity, which is measured in candela, या फिर उसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला, and the symbol is CD, small c small d. And the seventh and the last fundamental unit is amount of substance, which is being measured in mole and its symbol is mol. Okay. Similarly, we have 2 supplementary units also. We have 2 supplementary units of SI system, out of which one is radian and another is called steradian. So radian is used to measure the angle of a plane and steradian is another unit which tells about the angle of solids. So this is for solid, measurement of solid angles, and this is for plane angles. So there are 7 fundamental units and 2 supplementary units which comes under the SI system of units. So these were the 4 systems of units. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SI यूनिट्स के रूल क्या हैं, हम क्या क्या रूल्स फॉलो करके SI यूनिट्स को लिखते हैं वो देखेंगे। सो देयर आर इन टोटल 7 रूल्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग द SI यूनिट्स। तो व्हाट इज अवर फर्स्ट रूल? पहला रूल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या होता है? अगर हम किसी क्वांटिटी को लिखना चाह रहे हैं, सपोज फोर्स हमारी क्वांटिटी है, हम उसको लिख रहे हैं 10 न्यूटन,
सपोज वी आर राइटिंग दिस 10 न्यूटन, तो जो 10 न्यूटन पूरा लिख रहे हैं तो ये n हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज स्मॉल, यू कैन नॉट राइट NEW, कैपिटल N नहीं लिख सकते, दिस इज द फर्स्ट रूल। भले ही वो किसी भी पर्सन का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है, दो यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर। हाँ, लेकिन जब हम उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, दो इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, तो उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल। ये सेकंड रूल बोलता है जब आप सिर्फ n लिखोगे, n से रिप्रेजेंट करोगे तो कैपिटल N है, अगर आप पूरा लिख रहे हो उसका नाम न्यूटन तो स्मॉल n यूज करना है। तो ये दो रूल क्लियर हो गए। तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर मान लो कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि मास, तो जिसका यूनिट केजी जैसे किलोग्राम होता है, तो वो किसी के नाम पे नहीं है, तो जब अगर उसका नाम पे नहीं है तो कैपिटल हम यूज नहीं करेंगे, तब उस समय हम क्या यूज करेंगे, केजी, आप क्या लिखोगे, स्मॉल k रहेगा। ठीक है, ये थर्ड रूल है। तो इतना ध्यान रखना है, सिंबल कैपिटल कब होगा, जब किसी के नाम से सिंबल होगा, और किसी के नाम से नहीं होगा तो स्मॉल k यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है, जब हम फोर्स किसी भी क्वांटिटी को जब हम लिख रहे हैं 10 न्यूटन, मतलब उसका हमने नंबर से भी डिस्क्राइब कर दिया, उसका यूनिट भी बता दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में सर्टेन स्पेस होना चाहिए, एक स्पेस, नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते 10 न्यूटन एकदम पास पास चिपका के, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द यूनिट, सो देयर शुड बी अ सर्टेन स्पेस बिटवीन दिस टू, सो दिस इज अवर फोर्थ रूल। लेट अस गो फॉर द फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि जब हमको लेंथ लिखना है, दो वी आर राइटिंग 10 मीटर, तो हम इसको 10 मीटर ही लिखेंगे क्योंकि पूरा नाम लिख रहे हैं, लेकिन मीटर्स नहीं लिखना है कभी भी, क्योंकि प्लूरल नहीं होता यूनिट्स, ऑलरेडी बता रहा है 10 है तो 10 तो प्लूरल ही है ना, पहले से पता चल गया, तो मीटर्स नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग वे टू राइट, MERTRS, 10 मीटर्स नहीं लिखना है कभी भी, 10 मीटर ही लिखेंगे, भले ही 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 1 हो, लेकिन आप क्या लिखोगे, मीटर, सिंगुलर फॉर्म ही आपको यूज करना है SI यूनिट का। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ रूल क्या बोलता है कि जैसे F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन लिखा है, तो हमको क्या करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है हमारे सिंबल के बाद कभी भी, ये चीज याद रखना है, पूरा लिखने के बाद या सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इस तरीके से नहीं लिख सकते हम, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन फिर फुल स्टॉप, तो कभी भी SI यूनिट के बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर सेंटेंस एंड हो रहा होगा तब अलग बात है, नहीं तो इन जनरल हम लिखेंगे तो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज और है, लास्ट रूल आपका जो 7th बोल रहा है, जैसे वर्क एक क्वांटिटी है, वर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर हमने बोल दिया, तो 10 इसका क्या है, वैल्यू है जो नंबर डिस्क्राइब कर रहा है, और न्यूटन मीटर क्या है, उसका यूनिट है। तो ये जो यूनिट न्यूटन मीटर है, ये एक साथ लिखना है, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते न्यूटन यहाँ लिखा, मीटर कहीं और लिख दिया, तो न्यूटन मीटर एक साथ आना चाहिए। जो कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो दो से मिलके बनती हैं SI यूनिट, तो आप क्या करना है, उन दोनों के बीच में गैपिंग ज़्यादा नहीं रखना है, नंबर और यूनिट के बीच में रखना है, लेकिन यूनिट के बीच में आपको गैपिंग नहीं रखना है। तो दीज वेर द 7 रूल्स विच हैज टू बी फॉलोड बिफोर राइटिंग द SI यूनिट्स। सो विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज SI प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या है, नाम से ही एक, इंग्लिश आपको पता है कि इंग्लिश में प्रीफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज के पहले ऐड करना है, प्रीफिक्स मींस इस वर्ड से स्टार्टिंग से पहले ऐड करना। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमारी जो भी SI यूनिट होगी जिसमें हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मीटर, तो उसके पहले ऐड करेंगे, अगर ग्राम होगा तो ग्राम के पहले ऐड करेंगे, न्यूटन होगा तो न्यूटन के पहले ऐड करेंगे, प्रीफिक्स मींस पहले। तो जैसे कि हमको लिखना है सपोज 10 टू द पावर, मतलब 10 न्यूटन अगर हमको लिखना है 10 मीटर, तो हम 10 मीटर को कैसे लिख सकते हैं, 10 का मतलब क्या है भाई, 10 टू द पावर 1 डेका, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 डेका मीटर भी लिख सकते हैं, 1 डेका मीटर। सो देयर आर सर्टेन प्रीफिक्सेस, जैसे पहला है डेका मीटर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर 1। अगर मान लो 10 टू द पावर 2 वैल्यू हो गई, तो उसको हम बोलते हैं हेक्टोमीटर, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल h से। 10 टू द पावर 3 मतलब होता है किलो, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से। 10 टू द पावर 6 होता है मेगा, और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, नॉट स्मॉल। 10 टू द पावर 9 इज गीगा एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। 10 to the power 12 is tera, represented by T. Similarly 10 to the power 15, 18, 21, 24 are represented by peta, एक्सा, जीटा, योटा, जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P, कैपिटल E, कैपिटल Z एंड कैपिटल Y। तो हमने एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे यहाँ पे 10,000 मीटर है, इसको हमको मान लो किसी और में चेंज करना है, तो हम 10,000 मीटर को कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। और 10 टू द पावर 3 क्या होता है भाई, यहाँ से चेक करो, किलो होता है, तो 10 टू द पावर 3 मीटर के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोमीटर, तो इसके क्या लिख सकते हैं, टोटल 10 किलोमीटर।
तो ये तो कुछ बड़े यूनिट्स को इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे 0 आ जाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर से फिर आप मेगा मीटर, दूसरा जितने भी मीटर्स में आप हायर वर्जन में कहाँ तक जा सकते हैं, योटा मीटर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे सिमिलरली 10⁻1 था तो 10⁻⁻1 भी हो सकता है, तो 10⁻⁻1 जहाँ आएगा तो उसको हम बोलेंगे डेसीमीटर और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। 10⁻⁻2 को सेंटीमीटर, जो हम लोग बेसिकली छोटी छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। फिर 10⁻3 को क्या करते हैं, मिलीमीटर। 10⁻6 हमारा माइक्रोमीटर है और उसको म्यू से, ठीक है, एक ग्रीक सिंबल है म्यू, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻9 इस पर नैनो, स्मॉल एन। 10⁻12 पिको। 10⁻15 फेम्टो। 10⁻18 एटो। 10⁻21 zepto, and 10⁻24 is for yocto, and these are all small a, small y, small z. So these are our some SI prefixes जो हम यूज करते हैं और ये हमको हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ताकि हम वैल्यूज को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकें।